Hello and welcome to my video. Today we will be talking about a topic in physics that is physical quantity. First we will define the physical quantity, that is a quantity which can be measured, जिसको हम measure कर सकें, and by which various physical happenings can be explained, जिसके जरिए हम मुख्तलिफ physical happenings explain कर सकें, and expressed in the form of laws, और जिसको हम laws के form में भी express कर सकें. That is called a physical quantity. We have examples like force, we have length, we have mass, we have velocity, and many other things that comes in the category of a physical quantity. फिर हमारे साथ ये होता है that what are not the physical quantity. So we have some things that cannot be like we cannot say that they are physical quantities because they cannot be measured. We have examples like sorrow, happiness, and beauty. These are the things that cannot be measured, so they cannot be termed as physical quantities. Then a question comes in mind that why measurement is necessary. Now we know the measurement, so why it is necessary? So it is necessary basically to determine first the magnitude of a physical quantity. क्योंकि अब हम physical quantity को जानते हैं तो definitely हमें उसका magnitude भी measure करना होगा. So measurement इसलिए जरूरी है. Similarly, the second thing is to compare two similar physical quantities. कि हम दो similar physical quantities को describe कर सके. Let's suppose दो बंदों का height है. So उनको उसको अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करना चाहे तो वो हम कंपेयर कर सकते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज टू प्रूव फिजिकल लॉज और इक्वेशन. तीसरी हमने फिजिकल लॉज और इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमारे साथ मेजरमेंट दरकार होती है. अच्छा, नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी. अब चूंकि हम फिजिकल क्वांटिटी को जानते हैं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना होगा. सो representation of physical quantities need magnitude and a unit. Magnitude can be represented by n and unit can be represented by u. Now I have listed an example. जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने लिया है लेंथ का, जो कि 10 मीटर लेंथ मैंने लिया है. 10 मीटर का मतलब है कि ये जो 10 है ये उसके मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है. एंड मीटर इज व्हाट? मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. लेट्स रीड व्हाट आई हैव रिटन. इट मींस a length which is 10 times the unit of length. इसका मतलब ये है कि एक लेंथ, a length which is जो कि क्या है 10 times है, लेंथ जो है 10 times है the unit of the length. यानी ये जो है हमारे हमने कितना लेंथ लिया है 10 times लेंथ लिया है इस यूनिट के. तो ये यूनिट किसका है? लेंथ का यूनिट था ना. तो 10 times of meter. Here 10 represents the numerical value of the given quantity and meter represents the unit of the quantity which is under consideration. Thus, in expressing a physical quantity, we choose a unit and then find how many times, जिस तरह मैंने बताया कि कितना टाइम ये उसमें कंटेन करता है. जैसे कि ये 10 जो है मीटर्स कितना कंटेन कर रहा है 10 टाइम्स कंटेन कर रहा है. And then find how many times that unit is contained in that given physical quantity. अब चूंकि हमने पढ़ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़ी कि हम इसको मैग्नीट्यूड और यूनिट से जाहिर करते हैं. सो हम लिख सकते हैं ना कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट, और मैग्नीट्यूड को n से जाहिर करते हैं, यूनिट को u से जाहिर करते हैं. इसका मतलब ये है कि अब चूंकि ये दो फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट है, तो अगर एक चीज चेंज होगी यानी एज द यूनिट चेंजेस द मैग्नीट्यूड n will also change but the product of nu will remain constant. कैसे? ये आगे स्लाइड में आता है. अब चूंकि हमने इधर पढ़ लिया कि the product of nu will remain same, तो हम ये लिख सकते हैं ना इस तरह nu is equals to constant या is equals to same. कांस्टेंट का मतलब सेम नहीं होता है. तो अगर हमने इसको इस तरह लिख लिया, इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है. तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब नो मैटर इन हाउ मेनी वेज वी कैन मल्टीप्लाई देम, द प्रोडक्ट द रिजल्ट विल बी द सेम. सो अगर हम n1u1 को मल्टीप्लाई कर ले, n2u2 को मल्टीप्लाई कर ले, हमारे साथ रिजल्ट कांस्टेंट ही आएगा. हमें पता है कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो हमें पिछले क्लासेस में आप ये चीज समझ गए हो कि ये चीज जो है इसको हम प्रोपोर्शनलिटी की सूरत में लिख सकते हैं.
और NU अपनी जगह आ गया। अब इधर चूंकि कुछ भी नहीं है ना, तो इधर हम 1 लगा सकते हैं ना। अच्छा, अब आप इस तरह कर सकते हैं कि ये जो N है ना, अगर इसको हम इधर छोड़ दें और U को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर ले, तो हमारे साथ कुछ इस तरह आ सकता है ना। तो इससे आप क्या खस करते हैं, ये हमारे साथ n है जो कि मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट है। इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट के दरमियान जो ताल्लुक है दैट इज इनवर्स। मतलब इसका क्या है कि अगर हमारे साथ यूनिट इंक्रीज होती है तो n डिक्रीज होता है एंड वाइस वर्सा। इफ द यूनिट डिक्रीजेस देन द न्यूमेरिकल वैल्यू विल इंक्रीज। इसकी मिसाल मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से दे दूंगी। इधर आप ये भी आप पढ़ ले जरा। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। larger the unit, smaller will be the magnitude। मतलब जितना यूनिट बड़ा होगा उतना ही मैग्नीट्यूड जो है स्मॉलर होगा। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। लेट सपोज एक बंदा है, वो दुकानदार से 60 लेता है। सो लेट सपोज वो 40 किलो 60 ले लेता है। तो वो अगर दुकानदार वो कहे कि मुझे 40 किलो साल्ट दे दो, तो वो उसको दे देगा। लेकिन अगर वो उसको ये भी बोल सकता है कि मुझे 1 मन साल्ट दे दो। आपको पता ही ना कि 1 मन 40 किलो के बराबर होता है, तो 1 मन साल्ट भी यही सेम चीज है ना। चाहे आप 40 किलो किसी को बोल दो कि मुझे साल्ट दे दिया, 1 मन बोल दो, अगर आप किसी पाकिस्तानी दुकानदार को बोल दो तो वो समझ जाएगा। लेकिन अगर आप इधर देख लेंगे, देखिए इधर यूनिट छोटा है, किलो यूनिट है, और मन बहुत बड़ा यूनिट है। तो जब यूनिट छोटा है इधर, तो हमारे साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है। और इधर जब यूनिट देखे ये बड़ा है ना, यूनिट बड़ा है, मन का यूनिट काफी बड़ा होता है, 40 किलो के बराबर होता है, तो हमारे साथ जो n है ये हमारे साथ छोटा है। सो मैंने अभी आपको इसे आप समझ चुके होंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में हैं। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और इसी तरह कंसेप्चुअल वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ली। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कंसेप्चुअल टच दे दूँ लेक्चर्स का। नॉर्मली लेक्चर्स तो आप कॉलेजेस में भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आप कंसेप्चुअल हर चीज़ को बहुत डीपली पढ़े और उसको समझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।